Hello, very good morning students. Welcome back once again. In last video we have discussed about the string and operations what we can perform on the strings. Now today we will discuss about Python tuples and Python dictionary. In last video we also have discussed about the list and their operations, how to implement a list, how to do some kind of the traversing length function, concatenating and replicating of this list. Now today we will discuss about Python tuples and Python dictionaries. So in Python tuple, what we are going to do, actually tuple are just like a list, but there is some little change between the tuple and list is that a tuple is unchangeable ordered collection of items. Unchangeable means you are not allowed to do any kind of a change on the place in the tuple items. For example, let's understand how we can create a tuple. A tuple can be created with the help of just give a name to the tuple and whatever items you want to assign them in a open and close bracket. So this is the method. This tuple is the name of the tuple that we are going to create with three items: apple, banana and cherry. Press enter, and if you want to print the tuple, so this can be done using this tuple. As soon as you click on enter key, you get it displayed three items: apple, banana and cherry. Now let's check its data type as well. Type this tuple, it is of type tuple, class type tuple. Okay, now next, if you want to create a tuple with single item, for example, if t1 is the name of the tuple and you want to assign like this, suppose 10, means we want to assign only one value or one item in the tuple t1, that value is 10, and you know that 10 is an integer value, but we have included in the open and close bracket here. So let's check what happened. If you want to print t1, it give you just printing of 10. It means it is an integer value. Look at here. If you will print a tuple will get print in the open and close bracket like this. But here 10 is opened independently. It means it is an integer. Now you can check type of t1. Obviously it is showing an integer. Now what happened that it is an integer not a list tuple. ये tuple create क्यों नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन ये है, because whatever you will write a single entity of type integer or string, that will be counted as a same data type. If you want to create a tuple with single element, just you have to separate that single element with the simple comma. How to do this? Click here. If you will use a comma just after 10, it means you are willing to add few more items, but you right now you have inserted only one item, that is 10. Now it will create a tuple t1 और इसकी डेटा टाइप भी आपके t1 टप्पल ही रहेगा. लेट्स चेक, इसको प्रिंट करते हैं. अब देखो इसने क्या दिया, हमारा टप्पल प्रिंट कर दिया और इसके अंदर एक लिस्ट है, एक आइटम है, दैट इज 10. अब इसकी टाइप चेक कर लेते हैं. टाइप हमने t1 का चेक किया तो ये हमारा दे दिया टप्पल. अब आपको एक बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि इफ यू वांट टू असाइन ए सिंगल आइटम टू ए न्यूली क्रिएटेड टप्पल, it should separate by a comma, otherwise it will treated as an integer value. Okay, now further, if you want to create a tuple that contain nothing, means having no item, suppose t1, that can be created like this. t2 आप प्रिंट करोगे तो ये ब्लैंक टप्पल दिखाएगा. यह देखो इट इज नॉट जीरो, इसको ध्यान से देखोगे तो इट इज ए ओपनिंग एंड क्लोज ब्रैकेट साइमल्टेनियसली यूज्ड हैं. तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक ब्लैंक टप्पल क्रिएट करना है तो जस्ट डू इट. अगर आपको टप्पल क्रिएट करना है फ्यू मोर आइटम के साथ, तो आप ऐसे इसको क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, ए टप्पल कैन हैव एनी काइंड ऑफ द वैल्यूज, जैसा कि हमने लिस्ट के अंदर किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एक्सेस टप्पल आइटम्स.
फॉर एग्जाम्पल हमने हमारा जो टप्पल था, दिस टप्पल के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, एप्पल, बनाना एंड चेरी। हमें इसको एक्सेस करना है, यानी कि 1 बाय 1 एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है। तो सेम मेथड है हमारे यहाँ पे। चलिए हमारे सेम मेथड रहेगा। वो क्या है कि आप जब भी इसको एक्सेस करवाओगे, इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस कराओगे, दिस टप्पल, इंडेक्स वैल्यू आप अगर 0 लेते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा आपका, मीन्स फर्स्ट आइटम, एंड फर्स्ट आइटम इज एप्पल, यू नो दैट। ओके, सेम जो इंडेक्सिंग सिस्टम हमारा लिस्ट के अंदर चला था, जो स्ट्रिंग के अंदर चला था, सेम सिस्टम विल अप्लाई हियर। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट negative indexing. The same indexing process what we have learned in the list means if you want to access the very first element of this tuple, then you should have to use negative indexing of size length of its length, and its length is 3, क्योंकि इसके अंदर सॉरी 3 आइटम है, तो इस दिस टप्पल -3, और इंडेक्सिंग के साथ अपन ये ब्रैकेट यूज होती हैं। जो ही आप इसको एंटर करोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही इफ यू वांट टू एक्सेस द वेरी लास्ट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल विद नेगेटिव इंडेक्सिंग, दैट शुड बी डन विद यूजिंग दिस कमांड नेगेटिव ऑफ -1, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 1। तो दिस टपल having indexing value -1 will print the last element was the cherry element। okay, got the point। next topic is रेंज ऑफ इंडेक्सेस। ये जो रेंज ऑफ इंडेक्सिंग है, आपको उस दिन मैंने बताया था कि जो भी आप स्टार्ट और स्टॉप लेते हो, दैट इज द रेंज। जो स्टार्ट है, सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं, दिस टप्पल को मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा आइटम इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, और उसके अंदर मैं एक रेंज लेके आता हूँ, ठीक है। वो रेंज में लेता हूँ आपको, मीन्स आई वांट टू प्रिंट द टप्पल items having indexing value 2 means third element to the indexing value 5 minus 1, यानी कि फोर्थ इंडेक्सिंग वैल्यू विल प्रिंट द फिफ्थ एलिमेंट। इसका शॉर्टकट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर बताया था कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो रेंज है दैट इज एन इंडेक्सिंग वैल्यू। एक्चुअली बोथ आर इंडेक्सिंग वैल्यू, बट इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ से क्लियर क्या हो जाता है कि अगर आप 5 एज ए इंडेक्सिंग वैल्यू कंसिडर करोगे तो आप सिक्स एलिमेंट पे जाओगे, जबकि यहाँ पे जो रेंज का जो मेथड है वो क्या कहता है कि जो लास्ट पॉइंट आपने जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू डाली है, यानी कि एंड जो यहाँ पे 5 है, तो एक्चुअल में जब इसको एक्सेस कराएंगे तो वो जो एंड है यानी कि 5 माइनस 1 यानी कि फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था आपको कि जो स्टार्ट पॉइंट है आपका रेंज का, वो तो आप एज इट इज रखेंगे, यानी कि 2 इंडेक्स वैल्यू मीन्स थर्ड एलिमेंट। उसके बाद जो फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू है, आप इसको इंडेक्स वैल्यू न कंसिडर करके इसको एलिमेंट नंबर आप कंसिडर करेंगे, यानी कि इस टप्पल के अंदर फिफ्थ एलिमेंट तक ये चलेगा, थर्ड एलिमेंट से लेके फिफ्थ एलिमेंट। और थर्ड एलिमेंट यहाँ पे चेरी है, फिफ्थ एलिमेंट आपका कीवी है। इसके जब इसका प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखो यही आ गया, समझ गए। सो दिस इज हाउ टू एक्सेस ए रेंज ऑफ ए टप्पल। टप्पल के अंदर हम रेंज कैसे एक्सेस करवा सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, एक टप्पल की वैल्यू चेंज करनी है। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि टप्पल आर इम्यूटेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज, बट स्टिल वी वांट टू अप्लाई चेंज मेथड हेयर। देखते हैं कि एक्चुअली ये होता है कि नहीं होता है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा है उसको, दैट इज एप्पल, उसको हम आपको इसमें क्या आ गया, कुछ और ले लेते हैं, सपोज स्वीट बना देते, इसमें हम ले लेते हैं, आपका बनाना आ गया, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो, आपका ले लेते हैं पपाया, ठीक है। हम इसको पपाया से चेंज करना चाहते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा है एप्पल, उसको हम पपाया से चेंज करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। इसने एरर दे दिया। एरर क्या है, एरर टाइप जो है लास्ट में मिलता है आपको कि जो है टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मींस यू कैन नॉट चेंज आइटम ऑन इट्स प्लेस। इसका अल्टरनेट क्या रहेगा फिर हमारा, अगर हमें एप्पल को हटाना है, पपाया को लगाना है, तो क्या करेंगे, हम वही उसी नाम का टप्पल एक क्रिएट करेंगे,
यहाँ पे, और पपाया को उसके अंदर हम इनिशियल में ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद जो भी एंट्री है हमारी वो एज इट इज रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा एक नया टप्पल क्रिएट हो जाएगा जिसकी वैल्यूज होंगी, हम इसको ऐसे करेंगे और सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। नाउ प्रिंट दिस टप्पल and you will get a new tuple having first element is papaya। तो हमने क्या सीखा कि इन ऑन द प्लेस, अगर हमें एप्पल को रिप्लेस करना है पपाया से, दैट कैनॉट बी पॉसिबल, बट ए न्यू टप्पल। अब यहां से देखो, दिस वाज द ओल्ड टप्पल एंड दिस इज द न्यू टप्पल विद द सेम नेम हैविंग डिफरेंट आइटम्स। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स यूजिंग ए लूप। अगर हमें इसको एक्सेस करना है, क्या करेंगे, फॉर ए इन दिस टप्पल, ठीक है, एक लूप लगाएंगे, एक वेरिएबल है तो इस टप्पल के अंदर वेरी करेगा, और हम क्या करेंगे, प्रिंट दिस टप्पल इंडेक्सिंग वैल्यू ए। इसको ऐसे एक्सेस, ओके, दिस टप्पल समथिंग गॉन रॉन्ग, x in this tuple for, okay, what we have to do, need not to write the elements, क्योंकि a को हमने क्या किया है, a को सर्च किया है दिस टप्पल के अंदर, मीन्स डायरेक्टली इट विल सर्च दैट पर्टिकुलर आइटम लाइक पपाया, बनाना, चेरी, it will not point the indexing value, so we just print a and you will get all the values one by one in new line। आपको पता है कि जितने भी as many times you will use the print statement, it will print in new line every time। So next one we will learn about tuples is check if item exist। suppose अगर हमें कोई item exist करता है, हमें चेक करना है is that item exist in this list or not। उसके लिए क्या करेंगे, सेम हम फॉर लूप से भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हमें एक चेरी को चेक करना है कि वो चेरी अवेलेबल है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, ए इक्वल इक्वल इफ लगाएंगे, इफ ए इक्वल इक्वल चेरी देन, सॉरी समथिंग गॉन रॉन्ग, सिंटैक्स इनवैलिड, समथिंग गॉन रॉन्ग, हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, डायरेक्ट इसने वैल्यू से किया, लेकिन मैं उसको करना चाहता हूँ एक इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। इसने डायरेक्ट क्या किया, एक वैल्यू के थ्रू कर दिया, डायरेक्ट उस वैल्यू को ही सर्च कर दिया। हाँ, अगर मैं इसको लेता हूँ इफ ए इक्वल इक्वल चेरी, देन काम नहीं कर रहा है इस पे, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, हो गया। देन प्रिंट आइटम फाउंड एट इंडेक्स। हमें ये बताना है कि वो किस इंडेक्स पे मिला। हमें ये तो पता लग जाएगा कि आइटम फाउंड, लेकिन वो इंडेक्स किस पे मिलेगा, उसके लिए इंडेक्स फंक्शन जो हमने लिस्ट के अंदर किया था, सेम इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। इंडेक्स ऑफ ए, क्योंकि ए क्या है, यहाँ पे जो भी आइटम आप चेक कर रहे हो वो टप्पल का आइटम है, और वो उस एलिमेंट को यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, नेम प्रिंट, ओके, पी, ये बाय मिस्टेक हो जाता है, पी जो हमने यहाँ पे कैपिटल ले लिया, ऑल द कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर, नेम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, ओहो सॉरी, अगेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। इंडेक्स किसका, दिस टप्पल डॉट इंडेक्स। अभी देखो यहाँ पे चेरी जो था, आइटम फाउंड एट इंडेक्स 2, यानी कि आप चेक कर सकते हो आपका जो लिस्ट, आपका जो टप्पल था
उसके इंडेक्स वैल्यू 2 यानी कि थर्ड एलिमेंट चेरी है आपका। ओके, गॉट द पॉइंट। सो इन दिस वे यू कैन सर्च ए tuple item in the tuple using for loop and conditions। अगर हम डायरेक्ट इसको सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो आप इसको लेके आते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन नहीं लगाते, डायरेक्ट क्या करते हैं, कंडीशन तो फिर भी लगा, यानी कि वेरिएबल नहीं लेते डायरेक्ट। इफ पपाया इन दिस टप्पल, अगर हम इस टप्पल के अंदर पपाया को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि पपाया ले लेते हैं, चलो दिस टप्पल डॉट इंडेक्स ऑफ पपाया, ठीक है, डायरेक्ट हमने पपाया को ही कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अब ये बात देखो, ये इसने जितने भी आपके टप्पल आइटम थे उतनी बार आपको ये मैसेज प्रिंट किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो फॉर लूप हमने लगाया वो ए इन दिस टप्पल, वो हर एक आइटम को ट्रेवल करेगा, लेकिन ए को हमने कंडीशन के अंदर कहीं यूज ही नहीं किया। सो वट एवर वैल्यू ए हैज, आइदर पपाया, एप्पल, चेरी, बनाना, नथिंग, कुछ भी हो, उसके लिए क्या है, आपका कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी कंडीशन हर बार पपाया को चेक कर रही है और वो उस टप्पल के अंदर चेक कर रही है। और आपको पता है कि पपाया उस टप्पल के अंदर अवेलेबल है, तो जितनी बार ये लिस्ट लूप चलेगा उतनी बार ये आइटम फाउंड एट इंडेक्स 0, आइटम फाउंड एट इंडेक्स 0, ये मैसेज आपको प्रिंट देता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक टप्पल की लेंथ कैसे निकालें। सिंपल, जो हमने लिस्ट के अंदर किया था वही फंक्शन हम लगाते हैं, डॉट len दिस टप्पल डॉट लेंथ len, इससे आपका क्या है, सॉरी len दिस टप्पल, दिस इज द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द लेंथ ऑफ ए टप्पल, ठीक है। इसकी लेंथ 7 है, तो आपको देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम इसने प्रिंट दिया। उसके बाद हम देखते हैं, इफ यू वांट टू ऐड एन आइटम you cannot do some kind of the any kind of the editing, because once a tuple is created you cannot add item to it, tuple are unchangeable। एग्जाम्पल हमने आपको पहले करके दिखा दिया। दूसरा है, अगर आपको एक ऑलरेडी एक लिस्ट है, सपोज कोई भी एक लिस्ट है, लिस्ट 1, उसके अंदर आपको पता है कि लिस्ट आपको क्रिएट ऐसे होती है, लिस्ट 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके आइटम्स हैं। आप टाइप भी चेक कर सकते हो, लिस्ट की टाइप क्या है, ये लिस्ट टाइप दे देगा। इफ यू वांट टू क्रिएट अ टप्पल यूजिंग अ लिस्ट यू कैन डू, सपोज t1 इज अ टप्पल, उसके लिए टप्पल एक कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, tuple टप्पल, और उसके अंदर लिस्ट 1 को पास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका t1 एक टप्पल क्रिएट हो जाएगा, और इसकी टाइप आप चेक करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपको टप्पल मिलेगी। So this is the method of creating a tuple using a list. Along with this, if you want to create a tuple having predefined string like apple, APPLE, मैंने क्या किया, t1 जो है, ओके यहाँ से तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ से मुझे इसको टप्पल असाइन करना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या है, मैंने टप्पल के अंदर एक एप्पल एक कीवर्ड डाला, एक वर्ड डाला मैंने। अब ये जब t1 के अंदर टप्पल बन के जाएगा तो एवरी कैरेक्टर विल गेट इट्स पोजीशन इंडिपेंडेंटली, और जब हम इसको t1 को प्रिंट करेंगे तो a अलग प्रिंट होगा, PPPLE, और इसकी जब लेंथ निकालेंगे हम तो इसकी लेंथ 5 आएगी, लेंथ ऑफ t1, देखो, ठीक है। तो जैसा कि हमने लिस्ट के अंदर किया था, स्ट्रिंग के अंदर किया था, अगर आपके पास प्री डिफाइंड कोई स्ट्रिंग है, कंटिन्यूस कैरेक्टर की लेंथ है, उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप टपल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नया टॉपिक है उसमें, इफ यू वांट टू रिमूव एन आइटम,
तो वो भी आप इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टप्पल अनचेंजेबल होते हैं, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके आप यू कैन ज्वाइन 2 और मोर टप्पल टुगेदर। जैसे हमारा T1 टप्पल ये है और T2 टप्पल हमारा ये है। इफ यू वांट टू ज्वाइन दीज 2 टप्पल, जस्ट यूज कनकनेटेशन ऑपरेटर, जो हमने प्लस ऑपरेटर, जो नंबर सिस्टम के अंदर प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं टू मेक द एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो इन स्ट्रिंग, इन लिस्ट, इन टप्पल we use this operator for the concatenation. Concatenation means T1 plus T2 means T1 first, all the elements of T1 will get split, then T2 element means in a continuous series. This is known as a concatenation. अगर ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, T1 plus T2 का पहले T1 के एलिमेंट प्रिंट हो गए, उसके बाद T2 के एलिमेंट प्रिंट हो गए। अगर आपको लेंथ निकालनी है कि T1 plus T2 की लेंथ क्या आएगी, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू रेप्लिकेट ए टप्पल आइटम्स मेनी टाइम्स, सेम मेथड है, वन ऑपरेंड शुड बी ए टप्पल, अनदर ऑपरेंड शुड बी ए नंबर, जैसा कि हमने लिस्ट के अंदर किया था। इफ यू वांट टू प्रिंट द टप्पल T1 एलिमेंट्स 3 टाइम, जस्ट यूज T1, यूज स्टार ऑपरेटर, मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम नंबर सिस्टम में यूज करते हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो आपका देखो सॉरी, ये 3 टाइम आपकी सीरीज रिपीट हो जाएगी, एप्पल, एप्पल एंड एप्पल। उसके बाद हम करते थे इसके अंदर टप्पल कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, मैंने बता दिया कि आप टप्पल कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने T1 को किया, तो टप्पल इज ए कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ए टप्पल। फिर टप्पल मेथड भी है उसके अंदर कुछ, अगर हमें पता करना है, जैसे मान लो ये T1 है, सपोज ये जो है T1 स्टार 3, इसको मैं एक T5 नाम से टप्पल के अंदर असाइन कर देता हूँ, इसके रेप्लिकेशन को। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अंदर 3 बार आ गया, रिपीट हो गया वही आइटम। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता करना है कि हाउ मेनी टाइम्स A इज रिपीटेड इन T5 टप्पल। तो उसके लिए क्या करता हूँ, काउंट T5 डॉट काउंट में लगाता हूँ A, तो इसने ये बता देगा आपको कि A जो है T5 टप्पल के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ है। इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स। ऐसा ही अगर मुझे P को चेक करना है, ठीक है, P को चेक करना है, तो मैं P लिख देता हूँ और ये बता देगा कि P इज रिपीटेड 6 टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद इंडेक्स को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टप्पल। कुछ सिमिलरिटीज थी टप्पल एंड लिस्ट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ रीड करके वन बाय वन। पहले जो सिमिलरिटीज थी वो ये थी कि बोथ लिस्ट एंड टप्पल यूज लेंथ अलियन फंक्शन टू डिटरमाइन द लेंथ, ठीक है। अलियन जो फंक्शन होता है वो लेंथ के लिए दोनों के अंदर यूज किया हमने। उसके बाद है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, दोनों के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग मेथड फॉलो होता है। थर्ड जो पॉइंट था मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने कहाँ यूज करके दिखाया टप्पल के अंदर, जब मैंने आपको यहाँ पे फॉर लूप लगाया, उसके साथ मैंने इन, दिस वाज मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। इन एंड नॉट इन दोनों लिस्ट के अंदर भी यूज होता है एंड आपका टप्पल के अंदर भी यूज होता है। उसके बाद कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन, जो दोनों के अंदर यूज होता था, मैंने सारा आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। उसके बाद एक्सेसिंग इंडिविजुअल आइटम। अच्छा, आपको ये पता करना है कि कोई आइटम है पर्टिकुलर, उसका इंडेक्स कैसे, ये तो मैंने बता दिया। अगर आप इंडेक्स को वैल्यू डाल के एक्सेस करोगे तो आपको उस टप्पल का आइटम मिल जाएगा। उसके बाद कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। पहले डिसिमिलरिटीज क्या है, एक लिस्ट के अंदर आप आइटम को ऑन इट्स प्लेस चेंज कर सकते हो, व्हाइल इन टप्पल यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ चेंज इन द लिस्ट इन द टप्पल आइटम ऑन द इट्स प्लेस, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। अभी भी सपोज आपका T1 जो है उसके अंदर जो फर्स्ट है वो A है, उसको मैं T1 वाले A को सपोज मैं B से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि टप्पल इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा टाइप दैट डज नॉट अलाउ टू चेंज डेटा आइटम ऑन इट्स प्लेस। उसके बाद हमारा रेप्लिकेटिंग कर लिया हमने। उसके बाद स्लाइसिंग टप्पल हमने सारे फंक्शन कर लिए जो बुक के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स डिस्कस टू मोर फंक्शन that are available in tuple
mean and max function. Mean and max function. Actually, these two functions are used to display the minimum item value and maximum item value. For example, T2 was the tuple containing 12, 34, and 64. If we want to print the minimum item minimum of T2, so that is 12, and if you want to print maximum of T2, it is printed like this. So this was all about the tuple. Now we will discuss about the dictionaries. As you know, dictionaries are collection of unordered, changeable and indexed data types. यहाँ पे देखो क्या है, आपका items are unordered. In tuple, in list and strings, items are ordered. That was the point. But here the dictionary are the changeable items. यानी कि only two data types in the Python are allowed that do that on where you can do the some changing. One is the list, another is the tuple only. Sorry, dictionaries. So dictionary and list are two data types that allow you to make changes on its item on its place, while all other data types are immutable data types. So how we can create it? Python dictionary. A dictionary can be create using the curly brackets. तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है. If you use the bigger bracket, जो क्लोज आपकी जो बिग ब्रैकेट है, जैसे कि ये वाली ब्रैकेट, if you will create items using this, that was the list. If you create item using this bracket, open close bracket, वो आपका टप्पल क्रिएट करेगा. And if you will use these curly brackets, it will use to create a dictionary. ठीक है. डिक्शनरी के अंदर एक चीज और है कि all the items are not independent. There is a key and value linking in the dictionaries. Means every item is linked with its key value, and all the keys in the dictionaries are unique. All the keys in the dictionaries are unique. So here we will discuss about how we can create dictionaries using this. Suppose I just copy a code and paste it here. Now this dict is the name of the dictionary. आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हो. दिस DICT1. ओके, मैंने ये डाल दिया. अब यहां से देखो क्या हो गया. यहाँ पे वन इज द ब्रांड जो है इसके अंदर ये डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर है. उसके बाद कोलोन आर यूज्ड. उसके बाद है आपका फोर्ड. उसके बाद कोमा. अब जहां पे भी आपको डिक्शनरी के अंदर कोमा मिलेगा, इट मींस वन की पेयर इज फिनिश्ड हियर, अनदर की पेयर विल बिगिन हियर आफ्टर दैट. तो इस कोमा के बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो अनदर की पेयर वैल्यू है, उसके बाद अनदर. तो यहाँ पे देखो ब्रांड इज ए की and Ford is linked with the brand key. Another key is model and Mustang जो है उसका वैल्यू है. उसके बाद ईयर आपका अनदर की है और 1964 is the value linked to the year. ऐसा ही अगर आप इसको एक्सेस करवाना है DICT1 डॉट की, इसकी जो की है ब्रांड BRAND, अगर आप इसको एक्सेस कराओगे तो ये इसकी सॉरी इसने एरर दे दिया. इसको मैं एक्सेस कराता हूँ, फिर भी एरर दे दिया. मैं देखता हूँ एक बार क्या होगा इसमें. देखो ओके, इफ यू वांट टू एक्सेस, ओके हमने डिक्शनरी का यूज नहीं किया क्या. DICT1 इसके अंदर ब्रांड हमने यूज किया है. ओके वी हैव यूज्ड रॉन्ग ऑफ ब्रैकेट्स हियर. एक्चुअली यहाँ पे जैसा कि वहाँ पे इंडेक्सिंग के साथ हम यूज करते थे बड़ी वाले ब्रैकेट को, क्लोज ब्रैकेट को, ऐसे ही हम इसके डिक्शनरी के की को पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट एंड वी विल गेट द वैल्यू इन बैक. यहाँ पे देखो DICT वाज द नेम ऑफ द डिक्शनरी हैविंग ए की ब्रांड, और उस ब्रांड के साथ क्या वैल्यू आपके लिंक्ड थी वो आपको मिल गई, दैट वाज फोर्ड.
अब इसकी टाइप भी चेक कर सकते हो आप। अगर आपको उसकी टाइप चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे? जस्ट यूज द टाइप ऑपरेटर, सॉरी टाइप फंक्शन, एंड pass dictionary as an argument. You will get DICT is the short form for the dictionary data types. And if you want to create a dictionary like D1, with you can use DICT keyword as well to create a dictionary. उसके बाद आप एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। कैसे? D1 के अंदर मैं DICT1 को पास करना चाहता हूँ, तो देखो मेरा क्या, अगर अब मैं D1 को प्रिंट करूंगा तो क्या मुझे डिक्शनरी मिल गई? ऑब्वियसली जो डिक्शनरी, जो आइटम डिक्शनरी 1 के अंदर थे वही मुझे D1 के अंदर प्रिंट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं डिक्शनरी में क्या है। इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द कीज अवेलेबल इन ए डिक्शनरी, तो उसके लिए क्या करते हैं? D1 डॉट कीज हम इसके चलाते हैं, तो डिक्शनरी की जो कीज हैं वो आ गई आपकी ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। ऐसे ही अगर आपको ऑल द वैल्यूज प्रिंट करनी है तो D1 डॉट वैल्यूज आप प्रिंट कर सकते हो। तो उसकी फोर्ड, मस्टैंग एंड 1964, ये आपकी 3 वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम हैं वैल्यूज के ऊपर, प्रिंट कर दिया हमने। ओके, अगर हमें चेक करना है कि कोई की जो हमें पता करनी है कि इज दैट की इज अवेलेबल इन द डिक्शनरी और नॉट, तो उसके लिए क्या करेंगे? सेम मेथड जो हमारा टपल के अंदर हमने थोड़ी देर पहले किया वही करेंगे। इफ अगर हमें वो पता है उस वैल्यू का, जैसे हमें ब्रांड का पता है BRAND, हमें ब्रांड को चेक करना है। इफ ब्रांड इन D1, ठीक है, तो प्रिंट कर देगा। क्या मैसेज प्रिंट करवाना है? की इज अवेलेबल। ठीक है, तो की इज अवेलेबल। अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू न देके उस डिक्शनरी के अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो मैंने आपको वेरिएबल की हेल्प से बताया था, दूसरा मेथड जो हमने टपल के अंदर किया था, सेम मेथड हम इसको यहाँ फॉलो करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो लेंथ फंक्शन है वो डिक्शनरी की लेंथ निकालने में काम आता है। कैसे? अगर हमें निकालना है प्रिंट ln ऑफ D1, तो वो हमें मिल जाएगी लेंथ 3 है। 3 क्या है? अब ये मैं सोचा ना कि बेटा कि जो की है और जो वैल्यू है वो मिलके आपकी 2 लेंथ बनाएंगे, नो, वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका एक आइटम को रेफर करता है। फर्क कहाँ है? यहाँ पे आइटम और जो वैल्यू है और वो की है वो आपस में लिंक्ड है। जैसा कि आपके प्राइमरी की कंसेप्ट हमने पढ़ा होगा लास्ट टाइम भी, कि एवरी स्टूडेंट इन योर स्कूल इज असाइंड ए यूनिक address, and that unique address is the admission number of the students. Whatever you want to access from the students detail, you can just enter their admission number, you will get all the details in the system. तो यहाँ पे भी सेम मेथड है। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी आइटम, इंस्टेड ऑफ द सर्चिंग यू जस्ट एक्सेस थ्रू दैम देयर की। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी की होंगी, इसका मतलब क्या होगा? ऑल द कीज इन ए पर्टिकुलर डिक्शनरी शुड बी डिफरेंट. No two key values must be, no two key values have the same value. Now if you want to add items in the dictionary, तो उसके लिए क्या करेंगे? सपोज हमें इसी डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है, D1 के अंदर ही एक कलर ऐड करना है। वो कलर कैसे करेंगे? यानी कि कलर हमारा रहेगा क्या? की, और उसका जो कलर का जो वैल्यू देंगे हम वो रहेगा हमारी D1। D1 के अंदर हम करते हैं कलर, और कलर हम सपोज उस गाड़ी का जो कलर हम क्या देते हैं? सपोज व्हाइट कलर हमने उसको असाइन कर दिया। तो देखो ये एक नया की वैल्यू पेयर उस डिक्शनरी D1 के अंदर ऐड हो गया। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखो एट लास्ट आपको मिलेगा कलर और उसकी वैल्यू है व्हाइट। अगर अब देखो, अगर हमें उसको चेंज करना है, मान लो जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 1964 उसको 1970 बनाना है, यानी कि नया मॉडल हम उसको बताना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? D1 उसकी की क्या है? ईयर, उसको एक्सेस कराएंगे और उसके अंदर हम 1965 असाइन कर देंगे और D1 को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको
जो ईयर है उसके अंदर 1965 आ गया, 65 ऐसा नहीं क्या था, 65 आ गया। ठीक है, इससे आपका ये प्रूव हो गया कि डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, मीन्स यू कैन डू चेंजेस इन द डिक्शनरीज लाइक लिस्ट। रिमूविंग आइटम्स, इफ यू वांट टू रिमूव एन आइटम, तो यहाँ पे दो मेथड हैं आपके किसी भी आइटम को रिमूव करने के। वन इज यूजिंग आपका, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ सेट। यहाँ पे आपके दो मेथड हैं, मैं इसको भी यहाँ थोड़ा ले आता हूँ। आपका पहला मेथड क्या है, वन मेथड इज यूजिंग पॉप फंक्शन, पीओपी फंक्शन, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया देखो डॉट पीओपी। और एक फंक्शन है हमारे पास डिलीट, DEL। अब डिलीट में और पॉप में डिफरेंस क्या है, डिलीट जो है वो उस आइटम को परमानेंटली डिलीट कर देता है वहां से विदाउट शोइंग इन द रिजल्ट, वाइल पॉप आपका क्या है, उसको डिलीट तो करता है बट उसको आपको शो भी करता है कि दिस आइटम इज डिलीटेड। तो कैसे चेक करेंगे, अब देखो मान लो आपको एक जो मॉडल है उसी को रिमूव करना है डिक्शनरी से, तो क्या करेंगे, d1 डॉट पीओपी और उसके अंदर हम मॉडल पास कर देते हैं। तो देखो इसने आपको रिजल्ट में दे दिया कि मस्टैंग जो था वो रिलीट हो गया है। अब D1 को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडल और उसकी वैल्यू नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब हमारे पास इससे पहले जो D1 था उससे पहले dict1 था, उसके अंदर भी सेम वैल्यूज थी। तो अब हमें यहाँ से यूजिंग डिलीट फंक्शन की हेल्प से मैं इसके आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, थोड़ा सा मेथड फर्क है। यहाँ पे मेथड में क्या लिया था हमने, वी यूज डिक्शनरी नेम एट फर्स्ट, देन डॉट ऑपरेटर की हेल्प से पॉप फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पे डिलीट लगाएंगे DEL DICT1 और उसके अंदर हम जो वैल्यू पास कर देंगे वो क्या रहेगा, मॉडल, मॉडल वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ DEL कैनॉट डिलीट फंक्शन कॉल, ओके ओके, आई हैव यूज रॉन्ग ब्रैकेट हेयर। यहाँ पे आपका ये वाले ब्रैकेट चलेंगे, जब आप पूरा डिक्शनरी का नेम किसी एपिसोड डिलीट कर रहे हो तो आपको बिग ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ये आप देखो यहाँ से इसने क्या किया, डिलीट तो कर दिया मॉडल को, डिक्शनरी D1 से dict1 से इसको डिलीट कर दिया, बट इसने रिजल्ट डिस्प्ले नहीं किया। लाइक यहाँ पे जब पॉप फंक्शन की हेल्प से किया तो मस्तांग जो था वो इसने डिस्प्ले करवा दिया और आपका आइटम डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इसने डिलीट कर दिया और आपको बताया भी नहीं कि आप उसने क्या डिलीट किया। लेट्स चेक कि उसके dict1 के अंदर क्या है। अब वहाँ dict1 के अंदर क्या है, आपका मॉडल जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, गायब हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कॉपी ए डिक्शनरी। इफ यू वांट टू कॉपी वन डिक्शनरी इनटू अनदर डिक्शनरी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको कि D1 को जब अब जो dict1 है उसके अंदर हमने D1 को कॉपी करा देंगे तो dict1 भी आपका बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ कॉपिंग ए डिक्शनरी इनटू अनदर डिक्शनरी, कोई नया नहीं था। नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, ए डिक्शनरी विद इन ए डिक्शनरी। वो आप कैसे कर सकते हो, मैं सपोज इस कोड को कॉपी कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा। यहाँ पे क्या है, मैंने मल्टीपल डिक्शनरीज को एक्सेस कराया। मल्टीपल डिक्शनरीज के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे माई चाइल्ड, माई फैमिली एक डिक्शनरी है, उसके अंदर child1 एक की है, उस की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एक इटसेल्फ एक डिक्शनरी है। ये देखो ध्यान से देखने वाली बात है, child1 जो है वो उसके अंदर जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंटली एक डिक्शनरी है। उसके अंदर फर्दर नेम एक की है और एमिल एक उसका वैल्यू है, ईयर एक की है और 2004 उसका वैल्यू है। ऐसे ही child2 child3। अगर मैं फैमिली को मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नेस्टेड डिक्शनरी मिलेगा। child1 इज द की। अच्छा इसकी लेंथ निकालूंगा तो 3 मिलेगा मुझे, देख लेना। len ऑफ क्या था हमारा ये, माई फैमिली, इसकी लेंथ 3 है क्योंकि child1 इज द फर्स्ट की, child2 इज द सेकंड की एंड child3 इज द थर्ड की। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर तो सर दो की और हैं, नेम एंड ईयर। एक्चुअली दीज आर नॉट द की फॉर द माई फैमिली, दीज आर द की फॉर अनदर
डिक्शनरी, उस डिक्शनरी को डायरेक्टली हमने यहाँ पे यूज किया है एज ए वैल्यू। तो ये जो पूरी डिक्शनरी है वो एज ए वैल्यू ट्रीट होगी, एंड वैल्यू मीन्स सिंगल वैल्यू। इसलिए देयर इज ओनली 3 की वैल्यू पेयर अवेलेबल इन द माई फैमिली डिक्शनरी। नेक्स्ट इज अनदर मेथड टू क्रिएट डिक्शनरी। हमने क्या करेंगे, 3 अलग अलग डिक्शनरीज को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर एक थर्ड डिक्शनरी के अंदर उसको हम कॉपी करा देते हैं। देखो चाइल्ड 1 एक डिक्शनरी लिया हमने, उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दिया, चाइल्ड 2 अलग लिया, चाइल्ड 3, अब इसको एंटर करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, हम ऐसा करते हैं, कम कम करके ले लेते हैं, कंट्रोल सी दबाया, ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया। चाइल्ड 2 में हमने लिया यहां तक की वैल्यू को, चाइल्ड 2 एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया, और चाइल्ड 3 मैंने ले लिया यहां तक। ओके, व्हाट द पॉइंट, 3 डिक्शनरी हो गई हमारे पास, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। अब हम क्या करते हैं, माई फैमिली सॉरी, एक नई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ये वैल्यू जो है वो चाइल्ड 1 इटसेल्फ डिक्शनरी हो, जैसे हमने पहले लिया था ना, वो ये है। माई फैमिली के अंदर चाइल्ड 1 क्या है, एक की है, और चाइल्ड 1, ये वाला जो चाइल्ड 1 है वो देखो यहाँ वो पूरी डिक्शनरी है। अब आपको एक नोट करने वाली बात है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है। अगर हम इसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देते तो वो डिक्शनरी को एक्सेस नहीं करता, वो एक वैल्यू चाइल्ड 1 को एक्सेस करवाता। जैसे कि मैंने पहले ऊपर लिया है ना, जैसे एमिल है आपका, मॉडल के अंदर आपका जो भी था, ईयर के अंदर 1965, ब्रांड के अंदर फोर्ड। तो ये अगर हम इसको डबल इन्वर्टेड कोमा बनाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा, अदरवाइज ये एक वेरिएबल होता है, और ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये टाइप ऑफ डिक्शनरी है। इसलिए अगर हम माई फैमिली को प्रिंट करते हैं तो हमें नेस्टेड डिक्शनरी का एग्जांपल मिलता है। डिक्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना सीख लिया। अच्छा, एक डिक्शनरी को हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड एज वेल, कीबोर्ड से भी हम उसको डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, और डायरेक्ट डिक्ट ऑपरेटर की हेल्प से हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, D1 DICT, सपोज हमने ले लिया ब्रांड, ब्रांड में डाल दिया मारुति, ठीक है, मॉडल, मॉडल में डाल दिया ब्रेजा। चलो 2 आइटम की डिक्शनरी बनाते हैं और D1 को प्रिंट करते हैं, तो देखो आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी के कुछ मेथड हैं। फर्स्ट इज क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या काम करता है, डिक्शनरी की ऑल आइटम्स को रिमूव कर देता है। कैसे यूज करते हैं, D1 डॉट क्लियर, ऐसे करेंगे तो D1 के अंदर कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है, वो एक नल डिक्शनरी बन गया। उसके बाद कॉपी, D1 के अंदर D2 डिक्शनरी को, सॉरी D2 अवेलेबल नहीं है, D1 के अंदर dict1 को हमने कॉपी किया। नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रॉम कीज, रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यूज। उसके बाद आपका गेट फंक्शन है, वो क्या काम करता है, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड की, ठीक है। उसके बाद हम आइटम्स, तो क्लास काफी लंबी हो गई बेटा, यू विल ट्राई योर सेल्फ दिस फंक्शंस, दीज आर द बियॉन्ड योर बुक, ये आपके बुक के अंदर कम अवेलेबल रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आइटम्स क्या करता है, इट विल रिटर्न ए लिस्ट कंटेनिंग ए टपल फॉर ईच इट्स की वैल्यू पेयर। कीज आप की रिटर्न कर देगा, पॉप आपका रिमूव कर देगा विद स्पेसिफाइड कीज। पॉप आइटम से क्या है, आपका लास्ट इंसर्टेड आइटम जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सपोज dict1 था आपका, उसके अंदर जो लास्ट आइटम है, और dict1 डॉट पॉप आइटम, सॉरी पॉप आइटम पहले लिखेंगे, पॉप आइटम dict1 डॉट पॉप आइटम। तो यहाँ पे इसने लास्ट वाला जो एलिमेंट था कलर वाइट, जो की वैल्यू पेयर था, वो ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया। जो पॉप फंक्शन था वो क्या काम करता था, एक स्पेसिफाइड की जो एलिमेंट हम पास करते थे उसके ही बाद वो डिलीट करता था। सेट डिफॉल्ट returns the value of a specified key if the key does not exist with the space, it will, if the key does not exist
insert the key with the specified value. अगर हमें पास कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो की उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, अदरवाइज उस की एक डिफॉल्ट वैल्यू ये सेट कर देता है। अपडेट क्या करता है, किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को अपडेट करने के लिए और वैल्यूज तो उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। So this was all about today, and we have completed the 2 chapter of revision 2 1 and 2 that we all these lessons already we have discussed in class 11th, and nearly about 3 to 4 marks questions are coming from these two chapters. Sometimes up to 5 marks questions may carry these 2 chapters. So in next video we will continue the syllabus from chapter 3. Thank you students, thank you very much. Have a nice day.